Hi everyone, I'm going to react on a song on Coke Studio India YouTube channel by Gurdas Mann featuring Diljit Dosanjh and Jatinder Shah. I will read it for you guys. It was done on Independence Day, August 15, 2015 का है ये. And let me read out for you. On this Independence special on Coke Studio at MTV Season 4, we see Punjabi legend Gurdas Mann present a song called Ki Banu Duniya Da. He rewrites it here, adding a stellar performance by current Punjabi superstar Diljit Dosanjh. This exclusive track, arranged by Jatinder Shah, sees a massive collaboration of these big names of Punjabi music, reiterating a message for the youth that speaks about not forgetting your roots in this age of modernity. Especially picking on themes like drug abuse, disenchantment amongst the youth, and the future of our nation, the lyrical punch is delivered using a traditional verse with additional lyrics written by Gurdas Mann himself. Catch this powerhouse performance on this brand new season of Coke Studio at MTV. तो आज मेरा कुछ बहुत अच्छा सुनने का मन कर रहा था, सोलफुल, एंड आई थॉट कि क्यों ना गुरदास मान को सुना जाए ऑन कोक स्टूडियो. व्हाट कैन बी बेटर देन दैट. तो क्रेडिट्स में composition and lyrics are by Gurdas Mann. Singers Gurdas Mann and Diljit Dosanjh hai. Music producer Jatinder Shah hai. Harmonium and backing vocals Jatinder Shah. Drums is by Lindsay DeMello. Guitar is by Nigel Dilemma. Bass is Rushad Mistry. Acoustic guitar Pawan. Keys Rinku Rajput. Keys Rakesh Verma. Dholak and Dhol Iqbal Azad. Algoza and Tumbi. Algoza कोई इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? Wow. Algoza and Tumbi is by Vijay Yamla. Mandolin is by Chandrakant Lakshpati. Tabla is by Yusuf Ghulam Muhammad. Duff and Matka is by Pratap Rath. Percussion is by Nadeem Azab. Edited by Umar Sheikh. Mix and mastered by Sameer Charegaonkar. Wow. कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं मास्टरपीस बनने में. चलिए सुनते हैं की बनूं दुनिया दा. वाओ, मैजिक क्रिएट होने वाला है. चलो. अजरां दे किराए ते ले के हीरा इश्के दी चादर करी जान ली. होटल दे बेले च चूरी खवा के ए मच्छियां चरानी किधर जा रही है. ए चढ़ती जवानी किधर जा रही है. ए हुस्नो दीवानी किधर जा रही है. भी गए फुलकारियां भी गईयां कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां. घगरे भी गए फुलकारियां भी गईयां कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां. रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां. कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां. चल पे वाले की पाने की बनू की बनू की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वागरू जाने. 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 की बनू दुनिया दा अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी आए तारे आवे तेरी जुगनी साई घोड़ा वाले आवे.
खेलियां ओ पट्टिए मजा जिने मजाज खुल गई ओ किद्दियां दी रानी फैशना च रुल गई सुनदी गए सी गाने ओ की बनूं ओ की बनूं दुनिया का सच्चे पातशाह वागरू जाने की बनूं दुनिया का सच्चे पातशाह वागरू जाने की बनूं दुनिया का हाय अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी हाय तारे आवे तेरी जुगनी साईं घोड़ा वाले आवे जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी सानू सौदा नहीं पुगदा है सानू सौदा नहीं पुगदा होरा भी तो चना पुछदा और भी तो जना पुछदा की हाले सतलुज दा है कि हाले सतलुज दा पेंडे दूर पिछौरा दे वे पेंडे दूर पिछौरा दे पेंडे दूर पिछौरा दे वे पेंडे दूर पिछौरा दे ओ बाके दे बॉर्डर तेरा कुछ भी लाहौर दे है ना कुछ भी लाहौर दे पेंडे दूर पिछौरा दे वे पेंडे दूर पिछौरा दे पेंडे दूर पिछौरा दे वे पेंडे दूर पिछौरा दे हेलो 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 थैंक यू करन नटियां आ गईयां बले तो अंग्रेज वड्डियां आई डोंट लाइक दी पंजाबी हिंदी ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕੜਕਣ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਡਮਰੂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਚੜਦੀ ਦਿਲ ਮਿਲ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਲੜਦੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਨਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਹਾਏ ਤਾਰੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਸਾਈਂ ਘੋੜਾ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਹਾਏ ਤਾਰੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ वाओ इट एक्चुअली क्रिएटेड मैजिक एग्जैक्टली मतलब जैसा मुझे इस समय गाना सुनने का मन था इट्स टोटली बैंग ऑन आई वॉज टोटली इन अ मूड ऑफ लिसनिंग दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक बहुत ही अमेजिंग था एंड जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि ये गाना इट्स अबाउट नॉट फॉरगेटिंग योर रूट्स मॉडर्निटी मॉडर्न ज़माने में अपने रूट्स से जुड़े रहिए वो बताने के लिए गाना गुरदास मान जी ने लिखा है and these lyrics they talk about drug abuse disenchantment among the youth and future of our nation तो एंड जो लिरिकल पंच है वो वही है कि की बनूँ दुनिया का क्या होगा दुनिया का तो आई विल टेल यू इस गाने का जो ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश बिकॉज इट्स दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग इज़ रियली important
इन टुडेज टाइम. ऐसे गाने बहुत बहुत ज़रूरत है ऐसे गानों की हमें. तो हाउ दिस स्टार्ट्स इज कि आजकल के जो रांझे हैं वो किराए पे हीरो को लेके जा रहे हैं. यानी कि दीज डेज जो रिलेशनशिप्स हैं वो टेम्प्रेरी हैं. वन नाइट स्टैंड्स, कैजुअल रिलेशनशिप्स, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स हैं, परसिस्ट करती हैं आजकल. रूइनिंग द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ लव. Spending few bucks in hotel or restaurants is defining the needs. ओके कि कुछ चंद पैसे हम होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाके खर्च करें, उसी से प्यार जता देते हैं, वो डिफाइन कर रहा है हमारी नीड्स को. रांझा यूज टू हर्ड कैटल फॉर सो मैनी ईयर्स टू जस्ट सी हीर को देखने के लिए वो कैटल चराने जाते थे एंड ऑल. दैट वॉज द काइंड ऑफ लव एंड जो आज कल मिस होता है. आजकल हम ऐसा प्यार हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है. तो वेयर एग्जैक्टली द यूथ इज़ हेडिंग, वी आर रूइनिंग इट कम्प्लीटली. ब्यूटी एंड यूथ इज़ नॉट फॉर एवर. ओके, सो इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. हम मतलब अगर हम अपने यूथ की जब हम जवान हैं एंड ऑल तो हम उस यूथ में हम अपनी रूट्स को अगर भूल रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो ज़िंदगी भर तो ये यूथ रहने नहीं वाला है. मैंने बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट देखा है, इवन एक्टर्स के ऊपर कमेंट करते हुए. कोई अगर फेमस ओल्ड एक्टर है, उसने मान लो कोई बहुत अच्छी सी पिक्चर्स डाली है इंस्टाग्राम पे या कुछ, मैं देखती हूँ किसी ने बहुत अच्छी पिक्चर्स डाली हैं कुछ, तो आई हैव सीन मैनी यंगस्टर्स, मैनी यंग गाइज कमेंटिंग ऑन इट एंड इवन गर्ल्स कि अरे ये तो बुढ़िया हो गई है, बूढ़ी हो गई है, काइंड ऑफ एज इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट ओल्ड. मतलब बहुत ही वियर्ड लगता है कि मतलब ऐसी कैसी सोच है, ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हैं. ये कितनी स्टूपिड मेंटालिटी और स्टूपिड सोच है. यानी कि वो एक्चुअली अपने यूथ के नशे में इतने ज़्यादा धुत हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. यही कहा जाएगा ना. सो दिस इज़ वॉट दिस सॉन्ग टेल्स अस कि दैट इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यूथ और ब्यूटी ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला है आपके साथ. तो एंड देन इट्स सेज घाघरे भी गए, फुलकारियाँ भी गई हैं. यानी कि हमारे आउटफिट्स भी चेंज हो गए हैं. फुलकारी एंड जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं वो समहाउ इन न्यू जनरेशन कम होते जा रहे हैं, ये कम दिखते हैं अब ये सारी चीज़ें. एंड ओल्ड और ट्राइबल ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स कैन also can't be seen in years these days. And silk material dupatta, girl, they wear with suits, strings and suits with nets are lost. So रेशमी दुपट्टे, डोरी जालियाँ भी गईयाँ. Then wheels can't be seen, even the shame is gone. मतलब इसमें लिटरली ऐसा मत समझिए कि ये कह रहे हैं कि मतलब अब लड़कियाँ घूंघट नहीं लेती हैं या पर्दा नहीं करती है. इट्स नॉट इन द लिटरल सेंस, बट या दे वांट टू से दैट एक जैसे शर्म होती है या कुछ एक. So he's trying to say that even the shame is gone. Western clothing is being preferred now instead of our traditional clothing. Now what's gonna happen to this world, our culture, traditions, or rather Punjab now? I have also seen actually, I wear lot of Western dresses, but my wardrobe is totally balanced actually. I love wearing Indian dresses as well and Western as well, so it's a complete balance of both the wardrobes. But I have seen कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि हाँ मैं किसी के ऊपर अपना ओपिनियन थोपती नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू शुड सी एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स. जैसे मैंने देखा है कि देर आर मैनी गर्ल्स जो शायद एट religious places and all, like maybe Gurudwara or Mandir and all, they wear Western clothes and all. I somehow like पता नहीं मतलब ऐसा क्यों है, but ऐसा है that I prefer not visiting a temple or Gurudwara in Western outfits and all. I prefer wearing Indian traditional clothes because somehow I feel मतलब मेरे को खुद comfortable feel होता है in those dresses when I'm visiting such a place. So it should always be as you should dress as per the occasion, as per the place and all. And Indian dresses and traditional dresses are really beautiful yaar. मतलब you should always have a balanced approach I guess in styling and wearing clothes and all. So वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि totally हम western culture से influenced हो जाएं
अपनी रूट्स को भूल जाएं एंड बिल्कुल ही ना पहने. इट शुड नॉट बी सो ओकेजनल कि बस हाँ कभी हम किसी वेडिंग में जा रहे हैं तो बस तब पहन लिया. इट शुड बी बैलेंस्ड आई गेस. पता नहीं, मेरे को तो पसंद है, सो दैट्स माई थॉट प्रोसेस. Then what's gonna happen to this world? Ki banu duniya da. Our culture, traditions, or rather, he's talking about Punjabi culture. That it's fading away. Only our God or gurus, सच्चे पातशाह या वाहिगुरु ही जाने कि की बनु दुनिया दा. तो ये है. Then writer is referring to different poets, gurus, and God like symbols to address them. And now a writer addresses a beautiful village girl or woman. She's walking carrying a earthen pot. Matka sar utte matka khuhi de pani da, with full with water taken from well. And who can handle your beautiful uncontrollable youth? Wherever you go, you just shake the floor. Each step makes beautiful sound of anklet, जो पैरों में anklet पहनते हैं. And then oh beautiful young women, you have forgotten your traditional styles. You forgot your traditional dance and now following fashion of Western world. Then he says and you only listen to English songs ignoring and have dislike of a traditional folk music. There are many जो मेरे ख्याल से folk music या traditional music नहीं सुनते हैं, सिर्फ English songs सुनते हैं. So he's mentioning that what's gonna happen to this world, our culture, traditions, now only our God और गुरु knows. की बनु दुनिया दा, सिर्फ हमारे भगवान और गुरु ही जानते हैं. तो ये लाइन्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं. अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारिया भी तेरी जुगनी, साईं बोदा वालिया वे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी. दिस देन सानू सौदा नहीं पुगदा, रावी तो चनाब पुछदा. यानी कि दिस डील इज़ नॉट गुड प्रॉफिटेबल फॉर अस. 2 rivers, रावी एंड चिनाब ऑफ पंजाब, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो 2 रिवर्स हैं रावी और चिनाब, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर कि ये जो डील है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है. आस्किंग अबाउट द कंडीशन. एंड वो दोनों रावी और चिनाब जो हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हाल पूछ रहे हैं तीसरे रिवर का, सतलुज, विच फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये लाइन्स बहुत खूबसूरत हैं. रावी तो चिनाब पुछदा, रावी तो चिनाब पुछदा, की हाल ए सतलुज दा, की हाल ए सतलुज दा. राइटर इज एड्रेसिंग, यानी कि गुरदास मान जी एड्रेस कर रहे हैं द लॉस्ट beauty of holy rivers because of partition and issues of borders. So now the writer is addressing the villages of Peshawar, Pakistan, which were once part of one country, Peshawar, Pakistan, and now separated. That how far things have become. अब अलग हो गए हैं, कितना दूर जा चुके हैं. तो villages of Peshawar are far. Roads, हम सड़कों को भूल चुके हैं. roads have been forgotten because of borders and writer is looking for a way to Lahore. वो एक poetic feeling है कि अब सड़कें, अब रास्ते याद नहीं हैं. वो villages बहुत दूर हो चुके हैं. तो because of the borders, तो distances आ गए हैं, differences आ गए हैं लोगों के बीच में, सोच में. तो border between India यानी कि अमृतसर and पाकिस्तान, ओ वागा दे बॉर्डर ते, राह पुछदी लाहौर दी हाय, आस्किंग अबाउट द वे टू लाहौर. तो वो है. या देन उसके बाद वो फन आता है, पोइटिक फन, हेलो हेलो वाला जो शुरू होता है. दिलजीत दोसांझ गाते हैं हेलो हेलो थैंक यू करण नदिया. वी एड्रेस एवरी वन दीज डेज बाय हेलो एंड हाई बोलते हैं ना हम लोग एड्रेस करने के लिए. तो इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ एड्रेसिंग हेलो, राइट. सो पीपल से नमस्ते, सत श्री अकाल. सो now we have become westerners and youth these days doesn't like their own language, Punjabi or Hindi. Instead of running, they are running for learning English. So they feel, I don't know, maybe insulted for talking in their own language. They are insulting and abusing their own traditions, language and culture. It's very good to learn every language, he's saying, but you can't kick your own traditions because you like others.
तो आपको खुद के ट्रेडिशंस, आप नया सीख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप पुराना भूल जाओ। जैसे आप कहते हैं ना कि नए रिश्ते बनाने के लिए आप पुराने रिश्ते नहीं छोड़ देते हैं, तो वही एक बात है। ड्रग्स ने रूइन कर दिया है यूथ को। वीक बोन्स आर ओनली प्रोड्यूसिंग साउंड्स एंड आर नॉट ऑफ एनी यूज़, यू नो। पॉलिटिक्स या और पावर ने रूइन कर दिया है हमारे यूथ को। चीटिंग एंड डिसीविंग पीपल वी लव इज़ बीइंग डन। हम लोग चीट करते हैं, प्यार में आजकल लोग चीट करते हैं एक दूसरे को। एंड मर जाने मान ना की भरोसा कलदा। तो वो खुद से बात कर रहे हैं गुरदास मान कि ओ डियर मान, वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग टुमारो, कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। एंड सो वाई टू थिंक बैड अबाउट एनीथिंग और एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन। दैट्स व्हाट आवर एल्डर्स टॉट अस, कि किसी के बारे में कुछ बुरा क्यों सोचना है, एंड क्यों एक्सपेक्ट करना है किसी से कुछ। तो यस, सो दिस इज़ इट। ये था मीनिंग गाने का। एंड आई थिंक हमें अपने रूट से एक्चुअली जुड़े रहना चाहिए, बिकॉज हम हमारे जो एंसेस्टर्स ने हमें जो चीज़ें कही थी, जो बताई थी बातें, या जो भी कुछ पुराना है, आप वो छोड़ के सिर्फ नए पे नहीं जाना चाहिए। अपने रूट्स को हमेशा सहेज के संभाल के रखना चाहिए। And you should always be grounded, you should always be connected, you should always stay connected to your roots. So I totally feel कि जो गुरदास मान जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। You should always stay connected to your roots, because you know what, आप कई बार एक वो कहते हैं ना जवानी का नशा, एक्चुअली आपको एक अलग टैंजेंट पे ले जाता है। आपको नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है एंड ऑल, बट you should actually not forget your roots, your culture. You should always stay connected with your roots, because वो एक अलग शांति मिलती है अपने roots के साथ जुड़े रहने से। एंड वो आपकी खुद की फीलिंग है, that's your personal thing, because that's a feeling of pride, right? जो वेस्टर्नर्स हैं वो they are very proud of themselves, right? They take pride in their culture and everything. So it should not be that हम अपनी लैंग्वेज में बात करने से या and अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड ऑल पहनने से क्यों परहेज़ करें। दैट्स आवर ओन थिंग, वो हमारा है। तो हमें जो चीज़ विरासत में मिली हुई है उस चीज़ को क्यों छोड़ना है। विरासत में मिली सिर्फ दौलत ही क्यों पसंद आती है। विरासत में जो इतनी सारी चीज़ें, इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है आपकी, उसको क्यों हम इतना हल्के से लेते हैं। उस विरासत में मिली उस हेरिटेज को, उस कल्चर को बहुत सहेज के रखना चाहिए। और आई थिंक वी शुड ऑल इन सम वे और द अदर ट्राई टू अडॉप्ट जो हमें मिला है, उसको हमें सहेज के रखना चाहिए। एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डेफिनेटली अगर हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे तो हमें एक अलग खुशी भी मिलेगी, हमें एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी। आप जब वेस्टर्नर्स से मिलते हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, एंड दे विल लव योर कल्चर। सोचिए, आप बाहर से लोग आते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने, इंडियन कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ने, हिंदी लैंग्वेज लोग, संस्कृत लैंग्वेज लोग आके सीखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल में। सो you should also show some respect towards your own culture, and that's all I have to say. And बहुत ही खूबसूरत गाना था, and I hope आप लोगों को भी ये गाना पसंद आया होगा। एंड गाने को enjoy करने के साथ साथ जो गाने की डेप्थ है, जो हमें गाने के थ्रू गुरदास मान जी ने कहने की कोशिश की है, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो, एंड अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड दूसरों को भी उन सब चीज़ों को अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए प्रमोट करना चाहिए। और रादर वी शुड
या प्रमोट करना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दी वर्ड। चलिए प्रमोट करना चाहिए। और yes, so I will be doing another reaction video very soon, and I ensure कि मैं रोज़ एक reaction video post करूँ at least, and so guys do keep supporting, do hit the bell icon, and share my reaction videos with your friends who love watching reaction videos and love watching songs. And I also post मेरे social media के pages के links in the description box of YouTube, तो उसमें मैंने अपने Instagram and Facebook links डाले हुए हैं। Apart from the reaction videos मैं poetry भी लिखती हूँ। I post poetry on my Facebook page and Insta page, so do follow that अगर आप लोग poetry fans हैं। I write I write stories as well, अगर आप पोइट्री फ़ैन हैं एंड अगर आपको मेरी पोइट्रीज़ पसंद आती हैं तो डू फॉलो माई सोशल मीडिया पेजेस एज वेल, एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट एंड लव। बाय गाइज।